Good morning to all. This is the in-house training and third session of in-house training in BNT St. Mary's School 3430247, and teachers, those who have completed their training and got certificate on various points, various topics. They are just proceeding it, and they have taken it in charge, and the training is going really very good. It was wonderful session last time also, last day also. And this is the month of January 2022 when we are conducting this in-house session, and just we have fixed the target to complete for the session. And today's topic is stress management, and that is also called self-management skill, and that is really very important for everyone, either it is they are the teachers or any other professionals or the students or the parents. This is really relevant topic for everyone, that if you are stress free, then only you can make others stress free, then only you can handle your children, and just you can give some input to solve this and to self for the self management. So that's why today's topic is very good. I hope that everyone will attentively attend it, or just note that points. That is really very good. If you have any confusion, any suggestions, any feedback, then just at last that will be also made clear. And today's session will be presented by Nonit Kumar. Nonit Kumar, that he is a TGT, and graduate teacher for BNT St. Mary's School, and just he will start the session from 9:15 and just conclude it at 10:15. So over to Nonit Kumar. Nothing can bring you peace but yourself, said by R.W. Emerson. Good morning, all of you. I am Navneet Pandey from BNT School, and today I welcome all of you to in-house training. And today's topic is stress management. It is a part of self-management skill. Self-management skill has two parts. Number one is working independently, and second one is stress management. If you see these two topics, then you find out that these two topics are correlated to each other. If you work independently or you work stress free, it means you just manage yourself, you just develop yourself, you just achieve your goal by managing these two management. So let us see what this management says. Before that, before starting this topic, I just said, or I just put one story and then one assignment session. Then we will start this session. Okay? तो स्टोरी की बात मैंने की अभी कि हम एक स्टोरी से ही अपना इस सेशन का शुरुआत करेंगे, एंड इट इज वेरी important for this topic. At the end of this story, you all understand why I am putting this story in this session. ये बात है तमिलनाडु के एक छोटे से जिले का, छोटा सा गांव था. वहां पे एक लड़का था जिनका नाम था के वेंकटेश्वर, जिनका जन्म आपका ये 1962 के समय में हुआ था. जन्म के 8 साल के बाद उनके माता पिता ने उनमें देखा कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो एक्चुअल में हो नहीं रहा है. तो उनके माता पिता काफी परेशान हुए और उनको अलग अलग जगह पे दिखाना शुरू किए. फाइनली उनको किसी ने सजेस्ट किया कि भाई इस बच्चे को आप चेन्नई में दिखाइए. जब उनको चेन्नई में दिखाया गया तो वहां पता चला कि वो बच्चा फाइनली कैंसर से पीड़ित है. एक डॉक्टर थे, काफी प्रसिद्ध डॉक्टर थे वो, जिन्होंने बोला कि ये बच्चे को कैंसर है, जिसकी वजह से ये आने वाले 1-2-3 साल में इनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उन डॉक्टर ने कहा. वो बच्चा महज 8 साल का था और लोग उसको बोलते थे कि वो मेंटली डेवलप नहीं है, पर उस बात को उसने पकड़ लिया कि भाई हम कैंसर पीड़ित है, 2-3 साल में मेरी मृत्यु हो जाएगी. फिर
वो लोग सारे लोग घर आ गए। उनके माता पिता सोचने लगे कि अब इनको पढ़ा लिखा कर कुछ नहीं होगा। फिर उस बच्चे ने क्या किया कि अपने आप से वो एक बोला कि भाई ठीक है, हम 2-3 साल के लिए तो है ना, हम 3 साल में बहुत कुछ कर लेंगे। और हमें जो हुआ है वो कैंसर ही तो हुआ है, कुछ और बड़ा चीज और तो कोई चीज नहीं हुआ है, चलो इसको मैनेज करेंगे। ऐसा उनका सोच था उस समय। के वेंकटेश का बहुत अच्छा एक बुक भी लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको प्रोवाइड भी करा सकते हैं। फिर हुआ क्या कि भाई 1 साल बीत गया, उस बच्चे ने अपने पापा से जिद किया कि नहीं अब हमें स्कूल में भेजिए, जितने साल हम हैं उतने साल तो कम से कम हम पढ़ लें, उतने साल तो हम अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें कि भाई स्कूल लाइफ क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है, ये सारा चीज समझने का चीज था। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, वो बच्चा एज इट इज है और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं वो। 4 साल 5 साल बीतता चला गया। आफ्टर 15 इयर्स, 15 साल के बाद जब उस बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला उनके अपने दम पे, और वो भी आपका एम्स में जब उनको एडमिशन मिला, एम्स दिल्ली में उनको एडमिशन मिला, तो वो बच्चा क्या किया कि उन डॉक्टर से जाके मिले और बोले कि सर आपने तो कहा था हमें कैंसर है और हम 3 साल में मर जाएंगे, और अभी तक तो हमको वैसा कुछ हुआ नहीं। तो बोला कि पता नहीं आप, अब उन्होंने भगवान का सहारा लिया कि भाई भगवान ने आपको बचाया, आप देख लीजिए। फिर जब वो एम्स से अपना डॉक्टर का पूरा पढ़ाई कंप्लीट किए, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो जाके मिले सर आज 5 साल और बीत गया, मैंने डॉक्टरेट का पढ़ाई भी कर लिया, अब हम एडवांस स्टडी के लिए फॉरेन जा रहे हैं, अभी भी हमको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वहां भी बोला कि चलो ठीक है भगवान आपको बचाए। फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो हुआ कि ये डॉक्टर अमेरिका में अपना मेडिकल का पढ़ाई किया और अमेरिका में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये अच्छे डॉक्टर जाने लगे, के वेंकटेश सर। और जिस डॉक्टर ने इनको बोला था कि भाई तुम 3 साल में मर जाओगे, वो खुद मर गए, और ये डॉक्टर अभी हैं, इनका YouTube पे अपना खुद का वीडियो भी है। तो इस वीडियो को जब हम देख रहे थे तो इससे को रिलेट करने का सबसे बड़ा कारण मेरा ये था कि व्हेन यू जस्ट सी दिस topic, see this session, then you find out that stress are of 2 types. Number 1 is good stress and number 2 is bad stress. It's totally depend on you that how you can tackle that stress. मतलब आप उस स्ट्रेस को कैसे टैकल करते हैं, आप उस टेंशन परेशानी जिसका मतलब आप समझते हैं कि हाँ ये स्ट्रेस है, आप उसको कैसे टैकल करते हैं और कैसे उसको आप गुड में और बैड में बदलते हैं। एक विल पावर था उनके अंदर, और उससे क्या किया उन्होंने, अपने स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस में बदलते हुए उन्होंने अपना हर वो चीज अचीव किया जो वो चाहते थे, और जो इनसे लोग सोच लिए थे कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे हजारों एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। इस सेशन को यहाँ पे और इस स्टोरी को खासकर मेरा चूज करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं बीएनटी स्कूल के, वी ऑल आर एट डिफरेंट स्टेजेस, वी ऑल आर एट डिफरेंट एजेस। हम सारे अलग अलग एज में हैं और हम सारे ये सोचते हैं कि अगर हमारा लाइफ है 32 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, तो ही हम कुछ कर सकते हैं, either for our future or for BNT's future। पर ये जो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि नहीं मेरा एज अब हो चुका है, अब हम इस इंस्टीट्यूशन के लिए या जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप जाएं या अपने फ्यूचर के लिए आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेस। वही एक स्ट्रेस होता है, आप अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं, वो ही एक स्ट्रेस होता है जिससे आपको बाहर निकलना। और आई थिंक ये सेशन के थ्रू हम आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करवाएंगे कि आप कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। तो अभी हमारा है सेकंड एक सेशन है पर्सीव्ड स्ट्रेस स्केल। दिस सेशन और दिस असाइनमेंट will indicate you all, or you can judge yourself that at what stage you are in stress. This
scale of this assignment, just divide in 3 or 4 stages. So first of all, let's see what this case or this scale said, then we will go further. What is perceived stress scale? The perceived stress scale PSS is a classic stress assignment instrument. This tool helps us understand how different situations affect our feelings and our perceived stress. The questions in this scale ask about your feelings and thoughts during the last month. जो आपने मंथ अभी पास आउट किया, जो आपका बीत चुका है दिसंबर 21, उसमें आपने क्या किया? इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप जब उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप अपने स्ट्रेस लेवल को जज कर पाएंगे कि इज योर स्ट्रेस इज लो और हाई और मीडियम और वेरी हाई और गुड और बैड. In each case, you will be asked to indicate how often you felt or thought a certain way. Although some of the questions are similar, there are differences between them and you should treat each one as a separate question. इसमें कुछ क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो सिमिलर होंगे, पर आपको हर क्वेश्चंस को डिफरेंट वे, डिफरेंट एंगल में देखना है और तब आप खुद को रेट करना है, उसका रेटिंग करना है और आपको आंसर देना है. राइट? द बेस्ट अप्रोच इज टू आंसर क्विकली. दैट इज, डोंट ट्राई टू काउंट अप द नंबर ऑफ टाइम्स यू फेल्ट अ पर्टिकुलर वे. Rather, indicate the alternative that seems like a reasonable estimate. So let us see what are the questions. So here is the questions. Please rate each sentence scale in the notes. आप जो notes अपना लेकर बैठे हैं, आप खुद में एक एक क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्योंकि हम रीड करने जा रहे हैं आपके सामने, और प्लीज आप रेट भी करें, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल पता चलेगा सर एंड मैम. तो प्लीज let's see what is the first question said. First question: in the last month, how often have you been upset because of something that happened unexpectedly? तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि आप कितने बार अपसेट हुए ऐसे चीज पे जो अचानक से हुआ, जिसके बारे में आप सोचे नहीं. नंबर 2 is in the last month. Or please answer quickly. Please answer quickly. All of you. I request to all of you that answer, because it is important for you only, not for me. Second, in the last month, how often have you felt that you were unable to control the important things in your life? Question number 3, in the last month, how often have you felt nervous and stressed? Question number 4, in the last month, how often have you felt confident about your ability to handle your personal problems? Point number 5 or question number 5, in the last month, how often have you felt that things were gone your way? Point number 6 or question number 6 is, in the last month, how often have you found that you could not cope with all the things that you have to do? Point number 7, in the last month, how often have you been able to control irritations in